Very good morning, class. Okay, we were doing revenue receipts yesterday. We saw its one of the part of revenue receipt was tax receipts, and another is non-tax receipts. So we will discuss it today. Non-tax receipts. So what are non-tax receipts? Let us see. First is fees. Fees. So fees क्या होता है? Fees is a payment to the government for the services provided by the government. फीस क्या है? पेमेंट है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है आपको उसका. विच सर्विसेज? द सर्विसेज विच आर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल इन नेचर. एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल सर्विसेज जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करवाती है उसके बदले में जो आप फीस पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, दैट इज कॉल्ड फीस. It is a part of non-tax receipt. Okay, what can be the example? Example can be the fees of passport fees. The passport fees, when you go to passport office, for making a passport, you have to pay some amount to them for providing you passport. So that fees is passport fees that is given for the services provided by the government to you. Okay, court fees. When you have any case in the court, you go to court, you have to pay some court fees. That is the services provided by the government to you. Okay, birth certificate fees. When you go to take your birth certificate, then also some fees is charged by government for the services provided by them. So all the fees paid to the government for their services will come under the fees. Next is fines. What are fines? We all know. Fines are the payment which are made by law breakers to the government. If you break some laws, जो गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं उसको आप अगर ब्रेक करते हो, उसका फॉलो नहीं करते हो, यू डू नॉट फॉलो एनी लॉ, देन यू हैव टू पे द फाइन्स. ओके, लाइक यू गो ऑन अ रोड एंड यू ब्रेक द सिग्नल. ओके, यू आर गोइंग ऑन अ व्हीकल एंड यू ब्रेक द सिग्नल, देन यू हैव टू पे सम फाइन. दैट इज द फाइन. Okay, then you have to pay some amount to the government, that is the fine for breaking the law. Next is escheats. Okay, what are escheats? This is a new term for you. Okay, escheats means the income of state which arises out of any property left by people without any legal hire. For example, suppose there is an old man. ओके, ओल्ड मैन हैज़ अ प्रॉपर्टी, उसके पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिल्डिंग है उसके पास, ठीक है. सपोज ही डाइज एंड ही डज नॉट हैव एनी लीगल हायर, मतलब उसके कोई रिश्तेदार नहीं है और वो मर जाता है, ठीक है, उसके कोई रिश्तेदार नहीं है. लीगल हायर मतलब उसका कोई रिश्तेदार, मतलब जिसके नाम पे उसने वो प्रॉपर्टी करी हो, या कोई ऐसा कोई नहीं है जो प्रॉपर्टी को क्लेम कर सके. सो दैट प्रॉपर्टी इज़ टेकन बाय द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट यूजेज दैट प्रॉपर्टी फॉर इट्स इनकम. गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को यूज़ करती है, उस बिल्डिंग है तो उसको रेंट आउट कर सकती है, उसको सेल ऑफ कर सकती है. गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग विद दैट प्रॉपर्टी इफ़ देयर आर नो लीगल हायर और नो क्लेमेंट. कोई क्लेम करने नहीं आया उस प्रॉपर्टी को तो. ओके, दिस इज़ कॉल्ड एस्चीट्स. ये जो इनकम आती है इससे, इसको बोलते हैं एस्चीट्स. ओके, next is special assessment. This is also something new. What happens? Suppose you have a property, suppose you have a land on the land, you have a land. Okay, now at that area the government constructed a highway or government constructed a road. गवर्नमेंट ने रोड्स बना दी, वहाँ पे पूरा एरिया डेवलप कर दिया जहाँ पे आपका लैंड था. उस लैंड, so now what happens that the value of land increased. The value of land increased. Suppose the value of land before was rupees 5 crores. Now the government did some development out there. The government made some roads, highway आ गया उधर. Okay, suppose government इंडस्ट्रीज़ वगैरह आ गई, कुछ भी, मतलब वो एरिया पूरा डेवलप हो गया. अब उस एरिया के डेवलप होने की वजह से द वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज फ्रॉम 5 करोड़ टू 10 करोड़. उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 5 करोड़ से अब उस लैंड की वैल्यू कितनी हो गई? 10 करोड़. क्यों हुई? बिकॉज गवर्नमेंट डिड सम डेवलपमेंट देयर. गवर्नमेंट ने उधर कुछ डेवलपमेंट किया. सो the increase in the land value is due to the development by the government. So the person will have to pay some amount of increased value to the government. Yes, the person will have to pay some amount of the increased value to the government because the value increased due to the government's development there. Okay, क्योंकि गवर्नमेंट ने वहाँ पे डेवलपमेंट किया इसलिए आपकी लैंड की वैल्यू बढ़ी. तो आपको कुछ अमाउंट इंक्रीज, जैसे आपका 5 करोड़ इंक्रीज हुआ तो उसमें से कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज अमाउंट यू विल हैव टू पे टू द गवर्नमेंट. दिस इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट. दिस इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट. ओके, नेक्स्ट नॉन टैक्स रिसिप्ट इज income from public enterprises. Income from public enterprises means income from enterprises which are owned by the government. मतलब गवर्नमेंट की जो कंपनीज होती है, गवर्नमेंट की जो
एंटरप्राइजेज होती है वो जब काम करती है और उससे जो गवर्नमेंट को पैसा आता है, दैट इज़ कॉल्ड इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज. फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवेज, गवर्नमेंट इज ओनिंग द इंडियन रेलवेज. इंडियन रेलवेज किसकी है? गवर्नमेंट की है. ओके, सो एनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और एनी अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज earned by government from Indian Railways will be called income from public sector enterprises. Or another example is Indian Oil. Indian Oil is also owned by the government, so any income earned from Indian Oil will be called income from public sector enterprises, public enterprises. Next is income from sale of spectrum like 2G 3G. What happens, जो ये 2G 3G के लाइसेंसेज होते हैं, गवर्नमेंट्स कंडक्ट ऑप्शंस फॉर दैट. गवर्नमेंट उसके क्या रखती है? ऑप्शन रखती है. बिकॉज गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है आपको, गवर्नमेंट लाइसेंस दे रही है, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है? ऑप्शंस रखती है. ऑप्शंस मतलब बोली, ठीक है. तो whoever bids the highest bid, जो हाईएस्ट बिड लगाता है उसको फिर वो उसका लाइसेंस मिल जाता है. तो 2G 3G लाइसेंस ऐसे ही प्रोवाइड होता है. तो इससे जो पैसा आता है गवर्नमेंट को, सिर्फ लाइसेंस प्रोवाइड करवाने से द गवर्नमेंट अर्न सम मनी, दैट इज़ द ऑप्शन वैल्यू. ओके, ऑप्शन के अंदर जो पैसा आता है गवर्नमेंट के पास, इट विल बी कॉल्ड इनकम. दैट इज़ द इनकम फॉर गवर्नमेंट. वो क्या है? गवर्नमेंट की इनकम है. लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ने, तो उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट को कुछ मनी रिसीव हो रहा है. दैट इज़ इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G and 3G. लास्ट वन इज ग्रांट्स और डोनेशंस. Government may receive some money as grants or donations from public in case of natural disaster. Right now that is going on COVID-19 जो चल रहा है, कोरोना वायरस, उसके लिए बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, पीएम फंड के अंदर पैसा डाल रहे हैं. दैट इज़ द डोनेशंस और ग्रांट्स रिसीव बाय द गवर्नमेंट. वो किसने अर्न किया है? गवर्नमेंट ने अर्न किया है. एंड दैट इज़ अ नॉन टैक्स रिसीव, एंड देन दैट इज़ अ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. दैट वाई इट इज़ कैटेगराइज अंडर नॉन टैक्स रिसीव एज डोनेशंस. ओके, now let's move towards capital receipts. We are done with the revenue receipts. Let us move towards the capital receipts. Okay, when any receipt will be called capital receipt, it will be called only when it has two characteristics. There must be two characteristics in a receipt, then only it will be called as what it will be called? Capital receipts. Okay, so first characteristics is the receipts creates any liability for the government. The receipt should create any liability for the government. And the second characteristics is the receipt cause reduction in the assets of the government. या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी बढ़ गई या गवर्नमेंट की एसेट्स कम हो गई. ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर किसी रिसिप्ट में होती है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर कैपिटल रिसिप्ट. फॉर एग्जांपल लोन्स. अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया तो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, इट मीन्स इट इज़ अ रिसिप्ट फॉर द गवर्नमेंट. बट साइड बाय साइड इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, दैट द गवर्नमेंट हैव टू पे ऑफ द लोन. गवर्नमेंट की लाइबिलिटी हो जाएगी ना. अगर गवर्नमेंट लोन लेती है तो पैसा तो आ रहा है, इट इज़ अ रिसिप्ट, बट इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट टू पे ऑफ द लोन. ओके, अनदर एग्जाम्पल इज फॉर रिडक्शन इन एसेट्स. फॉर एग्जाम्पल द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर्स इन द कंपनी. गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है उसके शेयर्स सेल ऑफ कर दिए प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज को. गवर्नमेंट ने क्या किया? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के जो शेयर्स थे वो सेल ऑफ किसको कर दिए? प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिए. तो क्या हुआ? गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कम हो गया. इन्वेस्टमेंट्स, ये गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट है ना, जो गवर्नमेंट ने पैसा लगा रखा है पब्लिक सेक्टर में, दैट इज द इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट. सो इट इज़ एन एसेट फॉर द गवर्नमेंट. नाउ इफ इट इज सेलिंग इट ऑफ एंड रिसीविंग द मनी, देन देयर इज अ रिसिप्ट ऑफ मनी. बट side by side there is a reduction in the investment, that is reduction in the assets. That is why it will be categorized under capital receipts. Okay, there are some classification of capital receipts. First is recovery of loan. Okay, recovery of loan, it is also a type of capital receipt. Why? Listen, what happens, suppose the government has given loan to स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ गिवन लोन टू स्टेट गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को लोन दिया, ठीक है. तो दैट इज़ अ एसेट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या कोई एसेट हो गई, क्योंकि उसने किसको लोन दिया है? स्टेट गवर्नमेंट को. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इट इज़ एन एसेट एंड फॉर स्टेट गवर्नमेंट इट इज़ अ लाइबिलिटी. सो फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट व्हेन द लोन विल बी रीपेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट ने लोन वापस रीपे कर देगी तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, मीन्स इट विल रिसीव सम मनी, इट इज़ अ रिसिप्ट. बट साइड बाय साइड इट विल ऑल्सो रिड्यूस द एसेट्स. सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एसेट्स थी इन फॉर्म ऑफ लोन एंड एडवांसेस, वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. दैट इज़ वाई रिकवरी ऑफ लोन इट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स. ओके, नेक्स्ट इज
Borrowing and other liabilities, I already explained you that borrowings are capital receipts. Why? Because it will create a liability for the central government. The government can borrow from either general public, either from Reserve Bank of India or from rest of the world, means foreign banks. Okay, इन तीनों जगहों से गवर्नमेंट बोरो कर सकती है. लास्ट इज other receipts. Other receipts includes disinvestment. What is disinvestment? I already explained you. Like the government has invested some money in public sector enterprises. ठीक है, that is called investment. अगर कोई पैसा गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में लगा रही है, कुछ शेयर्स परचेज कर रही है, that is called investment. But when the government sell off its shares, the sell off its ownership to the private sector, जब गवर्नमेंट अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की जो ओनरशिप है वो सेल ऑफ कर देती है, देन इट विल बी कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. देन इट विल बी कॉल्ड एज डिसइन्वेस्टमेंट. ओके, नाउ we are done with the receipts. Budget receipts we are done. In budget receipt we have seen two types of receipts: revenue receipts and capital receipts, and their parts also. We are done with everything. Now let's come to expenditure. Now we will study about budget expenditure. Okay, like there were two types of receipts: revenue receipts and capital receipts. There are two types of expenditure: revenue expenditure and capital expenditure. First, let us discuss revenue expenditure. What is revenue expenditure? Okay, before that, what is budget expenditure? Budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government during the year. मतलब during the year government कितना expense करने वाली है, कितना खर्चा करने वाली है, उसका एक estimate, that is called budget expenditure. Okay, now let's come towards revenue expenditure. So what are revenue expenditure? For being an expenditure, a revenue expenditure, two characteristics must be fulfilled. Either of the two characteristics must be fulfilled. First is it does not create any asset for the government. It does not create any asset for the government, or it does not cause any reduction in liability of the government. It does not cause any reduction in the liability of the government. मतलब कोई भी आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उससे गवर्नमेंट की कोई एसेट नहीं क्रिएट होनी चाहिए, या गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी भी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ गवर्नमेंट इज़ डूइंग सम एक्सपेंडिचर, ओके, गवर्नमेंट कोई खर्चा कर रही है इन परचेज ऑफ सम एसेट्स, अगर इन परचेज ऑफ अ बिल्डिंग. सो इफ गवर्नमेंट इज परचेजिंग द बिल्डिंग, देन गवर्नमेंट्स एसेट इज इंक्रीज्ड एंड द गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर इज डन. ओके, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है ऑन परचेज ऑफ building, but this expenditure will not be revenue in nature because it is increasing the assets of the government. Likewise, if government is paying off its loan, government अपने loan pay off कर रही है, then it is an expenditure for government. But since it is decreasing the liability of the government, it will not be called as revenue expenditure. It will be called a capital expenditure. ये revenue में नहीं आएगा क्योंकि इससे क्या हो रही है, गवर्नमेंट की liability कम हो रही है. तो दो चीज़ें नहीं होनी चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए, एक तो कोई एसेट क्रिएट नहीं होनी चाहिए और एक लाइबिलिटी रिड्यूस नहीं होनी चाहिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो व्हाट विल बी द एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? फर्स्ट विल बी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सपोज गवर्नमेंट हैज टेकन सम लोन, okay, and government has to pay interest on that. So if government is paying interest, it is an expenditure for the government, but it is not creating any asset for the government, neither it is reducing any liability for the government, so it will be revenue expenditure. Okay, next is expenditure on subsidies. If government is giving some subsidies to the public or to industries, then it is an expenditure, but it is not creating any asset or reducing any liability. And defense purchases, equipments purchased for defense, food material purchased for defense people. Okay, so it is an expenditure, but it is not creating any asset for the government. It is a work of the government, so government is doing this expenditure. Okay, now there is very important note for you guys. Okay, what is the note? All the grants, underline the word grants. I am only talking about grants. All the grants given by central government to state government or union territories are treated as revenue expenditure. कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरीज को कोई ग्रांट्स दे रही है, द वर्ड इज ग्रांट्स, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. किसके अंदर आएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इवन सम ग्रांट्स में रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट्स. अगर उस ग्रांट को देने से कोई एसेट क्रिएट भी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की,
तो भी वो ग्रांट्स को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही क्लासीफाई करेंगे. ओके, अंडरस्टूड. Next is capital expenditure. For being an expenditure to be capital expenditure, either of the two characteristics must be fulfilled. First, it should create an asset for the government. It should create an asset for the government, or it should reduce a liability for the government. या तो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट होनी चाहिए एक्सपेंडिचर से, या गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होनी चाहिए एक्सपेंडिचर से. फॉर एग्जांपल, इफ गवर्नमेंट परचेज सम इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कंपनी, अगर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज किए, तो व्हाट विल हैपन, दिस इज एन एक्सपेंडिचर बिकॉज मनी इज गोइंग आउट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर परचेजिंग इक्विटी शेयर्स. बट on the other side, an asset as investment, an investment is also created. Investment है ना, किसी और कंपनी में के इक्विटी शेयर्स परचेज करना, it is an investment for the government, so it is also increasing the assets of the government. That is why it will be classified under capital expenditure. Okay, another example, repayment of loan. Repayment of loan is an expenditure because the money is going out, but it is also reducing the liability of the government. Government की liability भी साथ साथ कम हो रही है. That is why it will be categorized under capital expenditure. Okay, so some important items that can be classified under capital expenditure are expenditure on purchase of land and building. Okay, I explained you. Expenditure on purchase of machine, expenditure on purchase of shares, loans. Okay, now here it is, loans granted by central government to state government will be capital expenditure, but grants granted by central government to state government will be revenue expenditure. Okay, लोन अगर कोई दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहलाएगा. बट कोई ग्रांट दे रही है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज planned expenditure. It is planned expenditure. Okay, planned expenditure is an expenditure which relates to some specific plans or programs of development. अगर गवर्नमेंट ने कोई प्लान्स स्पेसिफाई किए हैं या गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम्स चालू करने वाली है, कोई भी प्लानिंग गवर्नमेंट के, जैसे 5 years प्लान होते हैं कि 5 years में वो लोग ये चीज़ें करने वाले हैं, तो उससे रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट करती है, इफ़ इट इज़ रिटन इन द गवर्नमेंट्स प्लान, गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी प्लान्ड इट, गवर्नमेंट हैज़ रिटन एंड it is in the plans and programs of the government that government is going to do that expenditure. गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करने वाली है, ऐसा गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि वो प्लान्स चालू करने वाली, पॉलिसीज चालू करने वाली वो वाली, तो उसके लिए खर्चा होगा. देन इट विल बी कैटेगराइज अंडर प्लान्ड एक्सपेंडिचर. सेकेंड, assistance by central government to state government. Any loan or any assistance given by central government to loan or by central government to state government will be categorized under planned expenditure. ये क्या कहलाएगा? एक planned expenditure. Okay, planned expenditure दोनों हो सकते हैं, रेवेन्यू इन नेचर भी हो सकते हैं और कैपिटल इन नेचर भी हो सकते हैं. ठीक है, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट इज गिविंग ग्रांट्स to state government, then it is assistance, it will be categorized under planned expenditure. Central government is giving ग्रांट्स और लोन्स दोनों दे रही, ग्रांट भी दे रही है, लोन भी दे रही है, तो ग्रांट दे रही है तब तो इट विल बी कैटेगराइज अंडर आर रेवेन्यू, और लोन दे रही है तो कैपिटल. बट ये दोनों ही किस में कैटेगराइज होंगे? प्लान एक्सपेंडिचर में होंगे. ठीक है, सो एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक प्लान्स और प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट, लाइक फॉर बिल्डिंग रोड्स, डैम्स, ओके, ब्रिजेस, इन सब के लिए गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये डिसाइड करके रखा है, देन इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर planned expenditure. Okay, now non-planned expenditure. What are non-planned expenditure? All expenses other, simple सी definition है planned non-planned की, very easy, हमें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है. all expenses other than planned expenditure is classified under non-planned. जो planned नहीं है वो non-planned है, सिंपल सी बात है. What it will include? It will include like routine day-to-day functioning expenses. मतलब गवर्नमेंट को जो डेली एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, डिफेंस के लिए, सब्सिडीज़ देने के लिए, ये सब कोई प्लान नहीं होते हैं. ठीक है ना, ये सब गवर्नमेंट के डे टू डे फंक्शनिंग के हैं, गवर्नमेंट को डेली वर्क करना है, इसलिए वो सब देने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. सो इट विल बी कैटेगराइज्ड अंडर नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवा रही है, लाइक लॉ एंड ऑर्डर की सर्विसेज, डिफेंस की सर्विसेज, तो इन सब के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जो प्रोवाइड करवा रही है, उसके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, दैट आर कॉल्ड नॉन प्लान्ड. दैट गवर्नमेंट हैज़ नॉट प्लान्ड, उसने लिख के नहीं रखा, ये कोई प्लान्स एंड पॉलिसीज़ के अंदर नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है, बट इट इज़ अ डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, रोज़मर्रा की काम के लिए, रूटीन वर्क्स के लिए जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर. ओके, यहाँ तक रखते हैं आज. ओके,
Bye bye.